everyone, I'm Dr. Kiran Mave, your chemistry mentor. So today we are going to start a new chapter which is chemical kinetics. Okay. Let's suppose there is a reaction, A changes to B, A is the reactant and B is the product. Okay. So the study of a chemical reaction includes certain aspects. What are these aspects? You should know whether this reaction takes place or not, whether this reaction is feasible or not. That is spontaneity of reaction or feasibility of reaction. With the help of Gibbs free energy change, del H, del S, you will find out whether this reaction takes place or not. डेल्टा जी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है. Suppose this reaction is feasible, this takes place by itself, this reaction is possible, then you will study about the extent of reaction. Extent of reaction consider it as a reversible reaction. So how fast the equilibrium will reach, that is what is the extent of reaction. ये कहाँ पढ़ते हैं आप? इक्विलिब्रियम चैप्टर में. Then you will study about the speed of reaction. Speed of reaction by which reaction proceed, the speed by which reaction proceed. So these are certain aspects which you should consider while studying the rate of reaction or while studying the mechanism of a reaction in detail. So we will deal with the speed of reaction or rate of reaction in this chapter. So rate of reaction. देखो रेट या स्पीड करने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि रिएक्शन की टाइप्स भी होती हैं बेस्ड ऑन द स्पीड. सो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली. दैट इज आपने जस्ट रिएक्टेंट को ऐड किया और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है. कुछ रिएक्शन है जो कंप्लीट होने में मंथ्स ले सकती हैं, वीक्स ले सकती हैं, डेज ले सकती हैं. दैट इज बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे रिएक्शन होंगे, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन वी हैव 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन, which is very fast reaction, very slow reaction, and reaction with intermediate speed. Very fast reaction जो बहुत ही फास्ट हो, दैट इज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जो आपकी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कंप्लीट भी हो जाए, बहुत फास्ट होती है. और जनरली ये होती है आपकी आयनिक रिएक्शंस. ओके, आयनिक रिएक्शन आपकी बहुत फास्ट होती है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये आपकी कंप्लीट भी हो जाती है. फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. Sodium hydroxide plus hydrochloride gives NaCl plus H2O. This is acid-base neutralization. NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है. और आपकी AgCl की फॉर्मेशन, सपोज AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3. So these are ionic reaction. They include ions. Okay, so these are very fast reactions. Some reactions are very slow. Rusting of iron is a very slow process. So this comes under very slow reaction. And there are certain reactions having intermediate speed. And we basically study the rate of reaction for these type of reactions. इंटरमीडिएट स्पीड जिसकी होगी, आप उसी के लिए बेसिकली क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. सपोज यू हैव एन एस्टर CH3COO C2H5. इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको एसिड प्लस एल्कोहल मिलेगा. ओके, और NH4NO2 का डिकम्पोजिशन, अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन, NH4NO2 gives N2 plus CH2. So these are certain reactions having intermediate speed
we basically study these type of reaction in rate of reaction. So let's start rate of reaction, which is the main topic. Rate और speed. इस चैप्टर से पहले आपने स्पीड का जो टॉपिक है वो कहाँ पढ़ा था? आप जनरली स्पीड देखते हैं, अपने डेली लाइफ में देखते हैं, व्हीकल्स की स्पीड देखते हैं कि सपोज आपके पास एक व्हीकल है जो टाइम t1, आप एक टाइम कंसिडर कर रहे हैं, टाइम t1 में उसकी पोजीशन है ये इस व्हीकल की. आफ्टर टाइम t2, एट टाइम t1 इसकी पोजीशन यहाँ है, एट टाइम t2 इस व्हीकल की पोजीशन आपकी इस प्लेस पर है. साइज सेम रहेगा, भाई उससे थोड़ा बड़ा बन गया, व्हीकल का साइज सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा. तो टाइम t1 पे व्हीकल की पोजीशन है दिस वन, आफ्टर टाइम t दैट इज टाइम t2 पर आपकी पोजीशन है यहाँ. तो इसकी स्पीड आप कैसे निकालोगे कि इस व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, है ना? दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल या ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल विद टाइम. दिस इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन. तो आपके पास भी क्या है, आपने एक व्हीकल के अंदर या एक आरबी के अंदर राउंड वाटर फ्लास्क के अंदर रिएक्शन सेटअप की. ओके, आपने क्या किया, इसके अंदर रिएक्टेंट ऐड किया. सपोज आपके पास एक रिएक्शन है A चेंजेस टू B, तो आपने A क्या है, रिएक्टेंट है, B क्या है आपका प्रोडक्ट. तो आपने रिएक्टेंट किस रिएक्शन में ऐड किया. इनिशियली रिएक्टेंट की कंसीडर है R1. सपोज A चेंजेस टू B, A इज द रिएक्टेंट एंड B इज द प्रोडक्ट. इनिशियल कंसंट्रेशन है इसकी R1. रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में. तो आप क्या कर रहे हैं, एट टाइम t1 आपने क्या किया, रिएक्शन को सेटअप किया. कुछ टाइम बाद आपने देखा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है R1 और प्रोडक्ट आपका बनना स्टार्ट हो गया है. सपोज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी t1. तो रिएक्टेंट ही तो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में. तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ओवर द टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज, और धीरे धीरे प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है. तो आपने देखा आफ्टर सर्टेन टाइम एट टाइम t2 रिएक्टेंट कितना बचा आपका R2, दैट इज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है R2 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर हो गई है t2. ये किस रिलेशन में हुआ, t1 से जब t2 तक टाइम गया तो R1 चेंज हो गया R2 में, t1 चेंज हो गया t2 में. रिएक्टेंट आपका क्या हो गया, कंज्यूम हो गया. दैट इज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हुई आपकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो गई है ओवर द टाइम. और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, इंक्रीज. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस ओवर द टाइम. तो कितना चेंज हुआ है कंसंट्रेशन में, अगर आप देखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट फाइनली हो गया R2, इनिशियली था R1. तो चेंज कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1. कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है. दिस इज द टर्म फॉर एक्टिविटी और कंसंट्रेशन. तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R2 माइनस R1, दैट इज डेल्टा R. ओके, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग ओवर द टाइम एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. सो चेंज कितने का आया, P2 माइनस P1. सो दिस इज डेल्टा P. अब आप खुद बताइए, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हुई है तो R2 तो लेस होगा देन R1, तो ओवरऑल क्वांटिटी आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना. R2 इज लेस देन R1, सो चेंज आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. अच्छा, चेंज इन टाइम, कितने टाइम में आप ये चेंज स्टडी कर रहे हैं, T2 माइनस T1 टाइम में आपने स्टडी किया, दैट इज डेल्टा T. सो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. अब हमारा मेन टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. It is the speed by which reaction takes place. अगर सिंपल लेमन टर्म्स में देखें, it is the speed with which reaction takes place. Why? In terms of concentration. Speed क्या है, कितना चेंज हुआ कंसंट्रेशन में, कितना टाइम में. This is the speed of reaction. So rate of reaction is the, it is the
change in concentration of reactant. ओके, देखिए जितना कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज हुआ है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, उतना ही चेंज उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में. सो यू कैन आल्सो कंसीडर द चेंज इन प्रोडक्ट. सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. सो आप इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो आप लगाएंगे माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इज इक्वल्स टू, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे करेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम. सो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. सो इन दिस रेट एक्सप्रेशन नेगेटिव साइन आया है रिएक्टेंट के साथ. सो ये नेगेटिव साइन क्या कंसीडर कर रहा है? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम. कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी तो आपने क्या साइन किया है? यहाँ नेगेटिव साइन लगाया है. दिस इंडिकेट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट decreases with time. Okay. क्या बताइए कि स्पीड नेगेटिव हो सकती है? किसी व्हीकल की स्पीड नेगेटिव हो सकती है कि नेगेटिव में स्पीड है? नहीं ना. तो स्पीड ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती. तो जब आपने क्या किया, R2 जो टर्म है वो लेस है R1 से, तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो ओवरऑल टर्म आएगी नेगेटिव. Since rate of reaction can never be negative, since del R क्या है आपका नेगेटिव, since rate of reaction can never be negative, तो आपने इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया? ऑलरेडी एक बार नेगेटिव लगा दिया. सो टू मेक इट पॉजिटिव देयर इज अ negative sign with reactant. Okay, so negative sign को आप दो तरह से ले सकते हैं. This negative sign indicates that concentration of reactant decreases with time. यहाँ positive sign है because concentration of product increases with time. और basically हमने क्यों लगाया है कि rate of reaction can never be negative. So आपका जो term है change in concentration of reactant में क्या होगा? ये नेगेटिव टर्म आएगी बिकॉज ये लेस है इनिशियल से. तो आपने इस टर्म को ओवरऑल पॉजिटिव बनाने के लिए ऑलरेडी यहाँ बाहर नेगेटिव लगा दिया. ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन. तो अगर हम कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन देखें उसके टर्म्स में हम रेट कैसे लिखेंगे? देखिए, आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, ये C प्लस डी. A एंड B क्या है? रिएक्टेंट. एंड C एंड D क्या है? प्रोडक्ट. तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव ऑफ डेल A बाय डेल T, है ना. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद टाइम. और ओके, ये डेल्टा बाहर आएगा कंसंट्रेशन टर्म्स के स्क्वायर ब्रैकेट में. थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे लिख दिया था, उसे करेक्ट कर लिया. दिस शुड बी लाइक दिस. ओके, B इज आल्सो रिएक्टेंट, सो माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ C सा प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? डेल्टा C बाय डेल्टा T एंड डेल्टा D बाय डेल्टा T. इस तरह से आप अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं. सो दिस इज अ रेट ऑफ रिएक्शन. सपोज देयर इज अ रिएक्शन PCl5 gives PCl3 plus Cl2. PCl5 डिकम्पोज हो जाता है PCl3 एंड Cl2. तो आप रेट ऑफ, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सबसे पहले देखिए रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए. P
1 यहाँ 1 है 5, 3 plus 2 5, so this is balanced. So rate of reaction is PCl5 is reacted, so change in concentration of PCl5 with time is equals to PCl3 is product, so plus delta PCl3 by delta T is equals to delta Cl2 by delta T. ओके, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं. सो दिस इज सिंपल केमिकल इक्वेशन जिसमें स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज 1. सपोज देयर इज सम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आल्सो रिटन हियर. सपोज आपके पास रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, हैबर्स प्रोसेस. सो M2 plus 3H2 gives 2NH3. This is formation of ammonia by Haber process. Okay, N2 plus 3H2 gives 2NH3. इसमें ध्यान से देखिए, 1 mole of nitrogen forms 2 moles of ammonia. 1 mole of nitrogen forms 2 moles of ammonia, और 1 mole of nitrogen will react with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia. Okay, so जिस रेट से 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है, ओके, आपका जो रिएक्टेंट है, यहाँ कुछ टर्म्स क्लियर कर लीजिए. रिएक्टेंट आपका डिकम्पोज होगा, दैट इज डिकम्पोज कह सकते हैं, या फिर डिक्रीज होगा, या फिर कंज्यूम होगा. ठीक है, तो जिस स्पीड से आपका रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, नाइट्रोजन कंज्यूम होगा, वो क्या है, अब आपका उसके डबल स्पीड से क्या हो रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है. या आप उल्टा हो सकते हैं हाइड्रोजन की टर्म्स में, कि जिस रेट से आपका नाइट्रोजन डिकम्पोज होगा उसका 3 टाइम्स होगा हाइड्रोजन का डिकम्पोजिशन रेट, है ना. सो आप इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, सो नेगेटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद टाइम. स्टोइकियोमेट्री 1 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट जब आप हाइड्रोजन के टर्म्स में लिखेंगे डेल H2 डेल्टा T, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3. तो आप इनको बैलेंस करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को जनरलाइज करने के लिए इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे. सो 3 डेल्टा T. ओके, सिमिलरली प्लस, सिंस अमोनिया इज ए प्रोडक्ट तो प्लस साइन आएगा, डेल्टा NH3 बाय 2 डेल्टा T. तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख रहे हैं. सो डेल N2 बाय डेल्टा T, डेल H2 बाय 3 डेल्टा T इज इक्वल टू डेल NH3 बाय 2 डेल्टा T. सो इन टर्म्स को आप इक्वेट कब कर सकते हो, जब इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, क्योंकि इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिफरेंट है. सो एक तो होता है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो आपने अभी लिखा इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक होता है आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन. डिसअपीयर कौन होगा, ओवर द टाइम कौन कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो डिसअपीयर भी कौन हुआ, रिएक्टेंट डिसअपीयर हुआ. तो रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस रेट आप कैसे निकालेंगे. सपोज A इज अ रिएक्टेंट, हियर PCl5 इज अ रिएक्टेंट, N2 and H2 आर रिएक्टेंट. तो डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सिंपल आपको क्या लिखना है, माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T. सिंपल आपको इस तरह से लिखना है. और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B कैसे लिखेंगे आप, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा T. ओके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, सिंपल R नाइट्रोजन डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T. एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आप कैसे लिखेंगे, R हाइड्रोजन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा T. जब आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन लिखेंगे, दिस इज डिसअपीयरेंस. अगर हम कहें रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन किसकी होती है, प्रोडक्ट की. रेट ऑफ फॉर्मेशन, सपोज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया,
So it will be R is equals to negative of delta NH3 by delta T. Rate of formation of Cl2. This is this is product. So plus change in concentration of Cl2 by delta T. तो देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन इंडिविजुअली हम कर रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्म्स में नहीं कर रहे हैं कि डिसअपियर किस रेट से हुआ आपका, अपीयर किस रेट से हुआ. दिस इज आल्सो कॉल्ड अपीयरेंस. सो इस प्रोसीजर में आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते. ठीक है, तो सिंपल लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम फॉर प्रोडक्ट. दिस शुड बी प्लस, दिस इज बिकॉज दिस इज प्रोडक्ट. और अगर आप रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा. जस्ट सिंपल आपको चेंज लिखना है, कोई स्टोइकियोमेट्रिक टर्म से डिवाइड नहीं कर रहा. लेकिन अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा. याद रखना, इससे इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, वरना वो गलत हो जाएंगे. लिख लीजिए बच्चे से, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. अब एक तो रिएक्शंस लिख के देखते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अच्छा, अगर आप देखें यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो यूनिट क्या होगी बताइए. यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम. ये कंसंट्रेशन किसकी हो सकती है, चेंज प्रोडक्ट की भी हो सकती है, रिएक्टेंट. तो कंसंट्रेशन का बेसिकली यहाँ चेंज आया है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम. दैट इज कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, C is equals to N by V. C is equals to N by V. So मोल पर लीटर, दिस इज मोल पर लीटर. और टाइम अगर आप सेकंड में मेजर कर रहे हैं तो चेंज इन टाइम इज इन सेकंड. सो यूनिट विल बी मोल पर लीटर पर सेकंड. और अगर आप चेंज मेजर कर रहे हैं मिनट्स में, सो मोल पर लीटर पर मिनट. सो दिस शुड बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप किस में मेजर कर रहे हैं, सोल्यूशन में मेजर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. सपोज आपके पास जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में है. गैसियस स्टेट में आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो कंसंट्रेशन नहीं मेजर करते हैं. गैसियस स्टेट में आप प्रेशर मेजर करते हैं. PV is equals to nRT, है ना. सो P is equals to N by VRT. सो P is equals to C RT. ओके, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, P by RT. ओके, तो अगर किसी कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट में प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं. तो अगर आपके गैसियस स्टेट में है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आप बेसिकली पार्शियल प्रेशर उनका स्टडी करते हैं. और पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में ही रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, बिकॉज गैसियस कंपोनेंट है, पार्शियल प्रेशर स्टडी करेंगे. सो चेंज इन पार्शियल प्रेशर विद टाइम, ये आप स्टडी. ओके, सपोज प्रेशर आपका ATM में है तो ATM, अगर टाइम सेकंड में है तो रेट विल बी ATM पर सेकंड. MM में भी हो सकता है, बार में भी हो सकता है, सिमिलरली सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है. तो आप इस तरह से रेट को पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में और कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो पार्शियल प्रेशर पता है आपको क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, अगर आपके पास दो गैसेस हैं A एंड B का मिक्सचर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होगा, A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट. लिखिए आपने. सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. अब देखिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की टू टाइप्स आ जाते हैं बेसिकली, जो हम स्टडी करते हैं. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इन दो टर्म्स में थोड़ा माइनर डिफरेंस है, इन्हें ढंग से स्टडी करना है. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए आपके पास है एक रिएक्टेंट और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में. ठीक है, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट ओवर द टाइम क्या होगा, कंज्यूम होगा. दैट इज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ओवर द टाइम क्या होगी, डिक्रीज.
और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर द टाइम क्या होगी, इंक्रीज। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें कंसंट्रेशन विथ टाइम, तो प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस तरह से जाएगी, और रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज, तो उसका इस टाइप से जाएगा ग्राफ। तो हमारे पास रिएक्टेंट होगा कंज्यूम, प्रोडक्ट होगा फॉर्म। तो अगर हम देखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के टर्म्स में हम इसे स्टडी करते हैं। दिस इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दैट इज N/V, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर विथ टाइम रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई ओवर द टाइम, डिक्रीज हो गई है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ फॉर द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लीजिए सपोज ये 0, 5, 10, 15, 20, 25, दिस इज 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 इन मोल पर लीटर। दिस इज द रेट ऑफ टाइम। सपोज टाइम आप मिनट में, सेकंड में, किसी में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आपके पास ये है कोर्स ऑफ द रिएक्शन, दैट इज इस तरह से कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हुई है रिएक्टेंट की ओवर द टाइम। अब आपके पास सपोज आपको एट टाइम t इक्वल्स टू 5 मिनट, सपोज दिस इज इन मिनट, तो t5 पर आपको रिएक्शन का एक रेट देखना है 5 to 20। टाइम जब आपका 5 है और 20 है, इस ड्यूरेशन में रिएक्शन की स्पीड क्या रही, रिएक्शन का रेट क्या रहा, अगर आपको वो स्टडी करना है तो आप उसे बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि जब टाइम इंटरवल आपका लार्ज हो, टाइम इंटरवल जो है फॉर द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वो आपका क्या है, लार्ज। आपको 5 मिनट से 20 मिनट्स के बीच में ये जो ड्यूरेशन है उसमें स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन इट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे निकालना है, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पॉइंट आया, 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो जब टाइम था आपका 5 मिनट्स, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन थी सपोज ये, सपोज दिस इज 0.45, एंड जब टाइम आपका आ गया एक पॉइंट बी दैट इज 20 मिनट्स, 20 मिनट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी कंसंट्रेशन है सपोज दिस इज 0.13 और 1 ओके। सो आप देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकालेंगे, एवरेज आर एवरेज कैसे निकालोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज रिएक्टेंट का ग्राफ है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम दैट इज चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आते हैं इन पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर हमने कंसंट्रेशन लिया है, तो क्या चेंज आ रहा है, देखो फाइनल कंसंट्रेशन इज 0.13, इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.45, तो चेंज कितने का आया 0.13 माइनस 0.45, और किस ड्यूरेशन में चेंज आया है 20 माइनस 5। तो इस मैनर में जो भी आपका आंसर आया मोल पर लीटर, सिंस टाइम मिनट में है तो आप लिखेंगे पर मिनट। ओके, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द ड्यूरेशन इज लार्ज। जिस ड्यूरेशन में आपको स्टडी करनी है रेट ऑफ रिएक्शन वो लार्ज है, तब आप उसको बोलोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, सपोज यहाँ ग्राफ प्लॉट कर देते, इसे नोट डाउन कर लेना पॉज करके। आपने फिर से क्या किया, सेम ग्राफ प्लॉट किया, दैट इज concentration of reactant, this is reactant in mole per liter over the time, तो concentration decrease होगी, this should be the graph। okay, अब आपसे कहा जाए, मार्किंग कर लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन, कि आपको इस पॉइंट पर दैट इज जब टाइम आपका है 12 सेकेंड्स, आपने ये कोर्स ऑफ रिएक्शन ड्रॉ किया, जब टाइम आपका 12 सेकेंड्स है या 12 मिनट, दिस इज इन मिनट, 12 मिनट है, तो मुझे इस इंस्टेंट पे स्पीड बताइए रिएक्शन की क्या है। एक तो आपको ड्यूरेशन दिया जाए कि 5 to 20 जो ड्यूरेशन है, टाइम स्केल है, उसमें रिएक्शन की स्पीड क्या है, या आपसे इंस्टेंटेनियसली बोला जाए कि 12 मिनट्स में जो स्पीड है उसे कैलकुलेट कीजिए।
So this is instantaneous rate of reaction at any instant of time. Instantaneous rate of reaction. That is rate of reaction at any instant of time. Is called instantaneous rate of reaction. तो सपोज आपको इस पॉइंट पर, सपोज दिस इज पॉइंट सी पर आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है. सो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. सो जो टाइम स्केल है डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, वो क्या होगा, चेंज क्या हम इंस्टेंट निकाल रहे हैं, तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. ओके, कि चेंज बहुत ज्यादा नहीं है, आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम के रेट निकालना है. तो आप देखिए किस तरह से करेंगे ग्राफ के फॉर्म में. ये जो पॉइंट है इस पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए. ये रहा टेंजेंट आपका. ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, इसे आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं ऑन वाई एंड एक्स एक्सिस. तो आपका जो होगा, सपोज दिस इज 0, दिस इज ए, अगेन दिस इज बी सपोज. तो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया उस इंस्टेंट पे, इसको एक्सटेंड कर दीजिए. अब देखिए क्या होगा, आर इंस्टेंटेनियस विल बी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. सिंस हम रेट की बात कर रहे हैं फॉर रिएक्टेंट तो आ जाएगा नेगेटिव. सो डेल्टा वाई, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. डेल्टा वाई क्या है आपका, ओ बी अपॉन ओ ए इन नेट. ओके, और अगर आप एंगल की फॉर्म में देखिए तो देखिए एंगल है आपका ये थीटा. सो स्लोप किसके बराबर होती है आपकी, tan थीटा के इक्वल होती है. और सिंस स्लोप कैसी आपकी नेगेटिव स्लोप है, तो आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दिस स्लोप. सो आप स्लोप इक्वल टू tan थीटा से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विच इज नेगेटिव ऑफ दिस स्लोप. सो आपको पता चला इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं. ये था इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट. अगर आप स्टडी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो देखिए क्या हो जाएगा, concentration of product in mole per liter. Again 0.1, 0.2, 0.3 and so on. This is arbitrary, these are arbitrary. So concentration of reactant increases over the time. So this should be the graph. Concentration of product increases with time. So increase आपका increasing form में आपने graph plot किया. So at time t equals to 5 और time t equals to 20. These two are the points A and B. So in this case R average क्या होगा आपका, A पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपने कंसंट्रेशन निकाली, B पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन कैलकुलेट कीजिए. सपोज दिस इज 0.18 एंड सपोज दिस इज 0.41. सो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया, 0.18 माइनस 0.41. रिएक्टेंट की टर्म्स में है तो बाहर माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज 20 minus 5. So this should be the average rate of reaction, okay, for product. And suppose for reactant, मैं इसी में बता देती हूँ. सपोज आपको इस पॉइंट पर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस फॉर्म में. तो अब आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड करोगे, यहाँ तो होगा नहीं, तो आप इसी को ले लेंगे इस तरह से. अब आप सिमिलरली दिस इज पॉइंट ए या सी बी, दिस इज ओ. तो आपका क्या होगा, देखिए आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स. डेल वाई दिस इज, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं ओ डी बाय ओ सी. और स्लोप की फॉर्म में भी देखिए आप यहाँ कर सकते हैं इस तरह से. तो ये एंगल क्या है, थीटा. तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा. अब इसकी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव स्लोप है, तो आर इंस्टेंटेनियस विल बी पॉजिटिव ऑफ स्लोप. इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, आर इंस्टेंटेनियस टू स्लोप के इक्वल आ जाएगा. स्लोप कैसे निकलती है, tan थीटा की फॉर्म में आपसे स्लोप निकलती है. ओके, समझ में आया. इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो. सो दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मींस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. इसे नोट डाउन कर लीजिए. अब एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपसे
कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बोर्ड गंदा हो गया काफी, है ना, डस्टर अच्छा नहीं है, गंदा हो गया। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है एंड इक्वेशन है 4NH3 plus 5O2, 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O, 4NO plus 6H2O. This is the chemical equation which is given here. So rate of formation of NO, rate of formation of NO is given, which is 3.6 into 10 raised to the power minus 3 mole per liter per second. Okay, find out the rate of disappearance of ammonia, rate of disappearance of ammonia and rate of formation of H2O along with rate of reaction. This is the statement of question. Okay, so देखिए बहुत इजी है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो जो सामने आता है लिखते जाइए, समझ लीजिए। तो आपको एक केमिकल इक्वेशन गिवन है, इस केमिकल इक्वेशन के लिए आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज आल्सो गिवन। बच्चे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO क्या होगा? सिंपल, डेल्टा NO, change in concentration of NO by change in concentration of time. Okay, so del NO by del T. This is the rate of formation of NO and this is given here 3.6 into 10 raised to minus 3 mole per liter per second. This is given. Now find out the rate of reaction, rate of disappearance of ammonia and rate of formation of water. So आपको क्या करना है, देखिए आपको निकालना है rate of disappearance of ammonia। वो क्या होगा? सिंपल नेगेटिव ऑफ डेल NH3 बाई डेल T। ये नेगेटिव साइन जस्ट ये दिखा रहा है कि डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन, यानी कि ओवरऑल रेट आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, ये पूछा है एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होगा? डेल H2O बाई डेल T। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू, सबके टर्म्स में लिखिए, माइनस डेल्टा NH3 बाई 4 डेल्टा T इज इक्वल टू, ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिएक्टेंट, सो माइनस O2 बाई 5 डेल्टा T इज इक्वल टू NO इज प्रोडक्ट, सो डेल्टा NO बाई 4 डेल्टा T is equals to delta H2O by 6 delta T. So according to this equation, del NO by 4 delta T is equals to del NH3 by 4 delta T. आपको यही निकालना है, देखिए। So minus del NH3 by 4 delta T is equals to del NO by 4 delta T, है ना? del NO by 4 delta T is given, 4 से 4 कैंसिल, सो del NH3 by del T क्या है? देखिए दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना गिवन है? del NO by delta T 3.6 into 10 raised to minus 3 mole per liter per second. Okay, now also calculate rate of formation of H2O. So according to this equation, these two are equal. Del NO by 4 del T is equals to del H2O by 6 delta T. You have to find out del H2O by delta T, rate of formation of H2O. तो आपने क्या किया, इसको फाइंड आउट करना है, इसे यहाँ ले जाइए। So 6 by 4 that is 3 by 2,
3/2 डेल्टा NO by डेल्टा T is equals to rate of formation of water. Okay, so del NO by del T कितना गिवन है 3.6 into 10⁻³ into 3/2. इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, 5.4 into 10⁻³ मोल per liter per second. Okay, now also calculate rate of reaction. So rate of reaction क्या होगा, देखिए किसी की टर्म्स में निकालिए. अमोनिया का भी है आपके पास, वाटर का भी है, NO का भी है. सिंस NO इज गिवन तो मैं NO के फॉर्म में निकाल रही हूँ. del NO by 4 डेल्टा T is the rate of reaction in terms of NO. del NO by डेल्टा T कितना गिवन है 3.6. so 3.6 into 10⁻³ divided by 4 0.9 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. इसे नोट डाउन कर लीजिए. ओके, सो अगेन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ रिएक्शन 2A plus B gives 3C. दिस इज द केमिकल इक्वेशन. द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C is 1.3 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A. सो आपके पास एक गिवन इक्वेशन है 2A plus 3B gives 3C. गिवन क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज गिवन. रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन एक ही बात है. कितना गिवन है आपको, दैट इज डेल्टा C by डेल्टा T इज गिवन 1.3 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड. फाइंड आउट द रेट ऑफ disappearance. disappear कौन हो रहा है आपका A. so rate of disappearance of A is negative of delta A by delta T. this whole term is rate of disappearance. ये आपको find out करना है. so आपको क्या करना है, find average rate of reaction. so R क्या होगा आपके पास, negative of delta A, stoichiometric coefficient is 2, so 2 delta T is equals to, in terms of B क्या है आपके पास, delta B by delta T. B is also reactant, so negative. In terms of C is product, so plus delta C by 3 delta T, because 3 is the stoichiometric coefficient for C. तो आपके पास देखिए ये इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं. so according to this equation, negative of delta A by 2 delta T is equals to delta C, change in concentration of C with change in concentration or change in time, तो 3 delta T. बेटा ये निकालना है आपको, ओवरऑल निकालना है ये, तो इसे ऊपर ले जाइए. सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल्स टू 2/3 डेल्टा C by डेल्टा T, एंड डेल्टा C by डेल्टा 3 इज 1.3 into 10⁻⁴. so it will come out to be around 8.66 into 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड. ओके, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे. तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट नहीं यूज करना, ओनली रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं. क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड होती है डिफरेंट. तो एक आपको ओवरऑल सबकी टर्म्स में इक्वल करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है. ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा.